We studied about the Indian National Congress. We studied that Indian National Congress, it was all thankfulness to our educated leaders, to our most intelligent leaders and practical leaders who started the Indian National Congress. In fact, they were the ones who believed in various principles of freedom, liberalism, and so on. Thereafter, we see that these moderate leaders, these educated leaders of Indian National Congress, they believed in constitutional methods. मतलब ये बहुत ही अपना काम legally करते हैं so that they could, get their demands granted from the British government. Hereafter, we see that there was a change in the Indian National Congress by the time it is 1905. In the year 1905, we see that Indian National Congress, it has some young leaders, some very warm-blooded leaders who do not believe in any constitutional methods. वो ये बोलते हैं कि कानूनों को फॉलो कर करके हमें अपने राइट्स की भीख नहीं मांगनी है. Rather, we are the ones who shall demand for our rights in front of the Britishers. Okay, so the lecture is going to be for next 1 hour, and at the end, we shall finish with this chapter along with the next one, which we have after this. Okay. So then we had the young leaders of Indian National Congress who rather believed in breaking all the rules and regulations of British. And more than that, they said that India is meant for us Indians. We do not need any damn British officer here in India to rule over India. Rather, we Indians are capable enough to rule our own country. And that is why we had some young extremist leaders in Indian National Congress who came to be known as Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal. All these leaders were the extremist leaders of the Indian National Congress. They wanted Purna Swaraj, they wanted complete independence rather than British ruling over India. So one such leader, one such amazing leader amongst the extremist phase was none other but Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, whose picture you can just see here on the screen right now. So Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, we see that he started with two newspapers in India. It was Kesari and it was Maratha. So basically Maratha was a newspaper in English language and Kesari was a newspaper in Marathi language. These two newspapers, they shed light on all the on the evils, on the criticism, on the policies, on suppressive policies of Britishers. More than that, when we talk about Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, he used to also write articles in various other newspapers. Unke zamane mein, during the times of Britishers, we see that Amrit Bazar Patrika was one of the most renowned newspapers in India. अमृत बाजार पत्रिका, ये जो न्यूज़पेपर इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी, ये एक्चुअली एक उर्दू न्यूज़पेपर था. उर्दू लैंग्वेज में ये न्यूज़पेपर जो था ये पब्लिश होता था मार्केट में, and it used to speak a lot against the Britishers, all the evil practices of Britishers, all the wrong policies of Britishers. But one fine day, then within in the midnight hour, we see that this newspaper, instead of Urdu language, it had been then changed into English language. And Amrit Bazar Patrika, it became an English newspaper which talked about the internal differences amongst the people. It exchanged ideas amongst the people. It brought about a common opinion in between the people of India. इसके बाद we have Lokmanya Bal Gangadhar Tilak again. He started with two festivals in India. उन्होंने इंडिया में दो फेस्टिवल शुरू करवाए. The first one was Shivaji Jayanti and the other festival was Ganesh Utsav. We see that Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, he started with these two festivals in India with one motive, to bring all the youngsters under one roof. Festivals के नाम पे वो इंडिया के youngsters को बुलाते थे. And then these youngsters, while enjoying the festival, they used to conduct a meeting and they used to spread the message of nationalism, patriotism, and so on. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, he was such an amazing person that at one point of time, he had been put inside the prison cell. And while he was there inside the prison cell in Mandalay, Mandalay, ये place आता है म्यांमार में.
So in today's date, the neighboring country of India on the eastern side of India is Myanmar. This country, it has a small little place in it which is called as Mandalay. Mandalay में Britishers का prison cell हुआ करता था. So all those leaders who used to be arrested in India, they used to be put there in Mandalay prison. So Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, he was there in the prison cell. जब भी वो जेल में थे, उन्होंने ये एक बुक लिखा जिसका नाम था गीता रहस्य. So he is talking about his interpretation of Bhagavad Gita. तो उन्होंने जब भी भगवद गीता को पढ़ा और जब भी उन्होंने ये भगवद गीता को समझा, तो उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन अपने ये बुक में लिखा है जिसका नाम है गीता रहस्य. एंड द कोर ऑफ दिस बुक, उनका जो ये पूरे बुक का जो फिलॉसफी है, उनका जो कोर अंडरस्टैंडिंग है, इज अबाउट कर्म योग. मीन्स you should believe in your actions more rather than what you speak. Actions, they speak more louder than words. So he talks about karma yoga. It is karma which is way more important, your actions which are way more important. So he stressed that the people should always be in action. उन्हें कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, अच्छा काम करते रहना चाहिए, you know, then and only then you can achieve your goal. So thereafter, there were various extremist leaders who opened up various schools, colleges in India. They said कि इंडिया में सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो इंडिया के बारे में सोचते हैं. Rather, India has a population of crores. And if all these people of India, जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, लेकिन अगर हम लोग इनको educate करें, इनको politically समझाएं कि क्या हमारे साथ गलत हो रहा है, and if we unite the people together, and if there is a mass participation, for sure we can fight against the Britishers. हम देखते थे कि मॉडरेट लोग, कुछ गिने चुने पढ़े लिखे लोग थे जो ब्रिटिशर्स के साथ वो लोग बातचीत करते थे देश के लिए. तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि इंडिया के सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इंडिया की पड़ी है, सिर्फ बाकी के पूरा अगर पॉपुलेशन देखोगे तो इनको कुछ भी नहीं पड़ी अपने देश के लिए. तो एक्सट्रीमिस्ट ने क्या बोला, यंग लीडर्स ने क्या बोला, नो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ऑल दिस पॉपुलेशन ऑफ 40 करोड़ 44 करोड़ पीपल टुगेदर. तो ये करोड़ों का जो पॉपुलेशन है, ये जब भी सब एक साथ आ जाए और सब जब भी एक साथ मिलके अगर ब्रिटिशर्स के सामने रिवोल्ट करे, तो फॉर श्योर वी कैन अटेन आवर इंडिपेंडेंस. सो दिस इज हाउ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स दे टॉक्ड अबाउट. वही टाइम पे व्हेन यू टॉक अबाउट द ईयर 1897 में जब भी हम पुणे जाते हैं, तो पुणे में वो टाइम पे एपिडेमिक ऑफ प्लेग फैला था. आई गेस एवरीबडी बाय नाउ नोज व्हाट इज एपिडेमिक. पुणे, ये पूरे सिटी में प्लेग, ये बीमारी फैली थी लोगों के बीच में. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी सी दैट हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे लॉस्ट देयर लाइफ. उस टाइम पे एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था डॉक्टर रैंड. And this British officer Rand, he was the one who was in charge of Pune. ये ब्रिटिश ऑफिसर पूरे पुणे में ये बीमारी को कंट्रोल में लाने का ट्राई कर रहा था, बट इन अ वेरी हार्श वे. ये बहुत ही एक हार्श ब्रिटिश ऑफिसर था जो लोगों को अपने घरों से बाहर निकालता था, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, या कोई यंग लड़की हो, या फिर कोई छोटे बच्चे हो. In front of the street, they used to, bring those people out of their houses. They used to check their temperatures. And thereafter, even if she's a female, she could be stripped off in front of the whole lane. So ये जो Dr. Rand थे, he was a very bad British officer. And at that point of time, we had Chapekar brothers in India. ये जो चापेकर ब्रदर्स थे, उन्होंने मिलके ये रैंड को मार दिया. He was a British officer who had been then assassinated. He had been killed by Chapekar brothers. Britishers को लगा that Lokmanya Tilak, he is the one who is involved in this assassination. ब्रिटिशर्स को लगता था लोकमान्य तिलक ने चापेकर ब्रदर्स की मदद की है ये ऑफिसर रैंड को मारने के लिए. बट ब्रिटिशर्स अनसक्सेसफुल थे उनके खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा करने के लिए. फाइनली ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा आता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पे और वो उनको जेल में डाल देते हैं. सो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, देन ही वाज बीइंग पुट इनसाइड द प्रिजन सेल एट मंडलाई अगेन. उनको म्यांमार में वापस जेल में डाल दिया और वो जेल में ही रहे फॉर द नेक्स्ट 6 कमिंग ईयर्स. फाइन. Now we'll move on to the next event which happened, and that was partition of Bengal.
I'll just show you one PowerPoint presentation right now. I'll show you one list right now. So these are the three youngsters, Bal, Lal Bal and Pal. Lala Rajpat Rai, Bal Gangadhar Lokmanya Tilak, and he's Bipin Chandra Pal. Okay. I just want you to look at this picture right now. ये इंडिया का बंगाल प्रोविंस था. आज की डेट में ये बांग्लादेश है और ये वेस्ट बंगाल है. So there is a question being asked by Anshul from Saidam that why was Bal Gangadhar Lokmanya Tilak being put inside the jail? रीजन क्या था? उनके खिलाफ तो कोई सबूत मिले नहीं थे ऑफिसर रैंड को मारने के लिए या चापेकर ब्रदर्स की मदद करने के लिए. उनको जेल में बिना किसी सबूत के ब्रिटिशर्स ने डाल दिया. उनको बदला लेना था इसलिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवेंज, because they were angry with Bal Gangadhar Tilak, so they had put him inside the prison cell. As simple as that. Okay. So talking about Bengal, आज का ये जो ग्रे शेडेड रीजन तुम्हें यहाँ पे मैप पे दिख रहा है, that is today's Bangladesh actually. If you go to see more clearly, ये हिस्सा बांग्लादेश होता है. ब्रिटिशर्स के ज़माने में दिस होल बांग्लादेश इट बिलोंग्ड टू इंडिया. वेस्ट बंगाल यहाँ पे ये एक स्टेट दिखेगा जो इंडिया के पास है आज की डेट में. इट्स वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया टुडे. सो वेस्ट बंगाल और ये पूरे बांग्लादेश को जब भी हम एक साथ लेकर आते हैं तो ये ब्रिटिशर्स के ज़माने का बंगाल था. You can just see this person over here, this guy over here. His name is Lord Curzon. So Lord Curzon, he was basically the British Viceroy of India. लॉर्ड कर्जन जो इंडिया के ब्रिटिश वाइसरॉय थे, ये बहुत ही बेकार इंसान थे. व्हाट डिड ही डू? ही सेड दैट ही इज गोइंग टू पार्टीशन दिस बंगाल. उन्होंने बोला मैं ये बंगाल का बंटवारा कर रहा हूँ. तो ये एरिया को वेस्ट बंगाल बोला जाएगा और ये एरिया को ईस्ट बंगाल बोला जाएगा. और ये दोनों बंगाल के बीच में एक पार्टीशन होगा, एक बाउंड्री बनाया जाएगा. लॉर्ड कर्जन ने ये चीज़ का रीज़न ये दिया कि ये बंगाल ना एक बहुत ही बड़ा टेरिटरी है, तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है इसके ऊपर रूल करना. इसीलिए वो ये बंगाल का बंटवारा कर रहे हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. क्योंकि वो लोग अपना काम इजीली कर पाए, इसलिए ये बंगाल को दो हिस्सों में खाली डिवाइड किया जा रहा है. ये एक ऑफिशियल रीज़न देते हैं लॉर्ड कर्जन इन फ्रंट ऑफ द पीपल, बट एक्चुअली he had an evil motive behind this. इसके पीछे उनका एक सेल्फिश मोटिव था. एक्चुअली ईस्ट बंगाल में रहने वाले जो लोग थे वहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, और ईस्ट बंगाल में रहने वाले लोग मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, और वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोग जो थे दे वर हिंदूज हु वर इन मेजॉरिटी. So basically, by partitioning this whole province of Bengal into two parts, he was actually trying to divide Hindus and Muslims. He is actually trying to follow that policy of divide and rule. So if you look at this paragraph over here, you will understand this more clearly. In the year 1905, we had Lord Curzon, who was the Viceroy of India. He said that Bengal is a very large province. So in order to work more easily for, वो administrative difficulty को कम करने के लिए, he's giving that reason that he's going to partition Bengal in 1905. उसके बाद हम देखते हैं कि उनका जो सेल्फिश मोटिव था वो क्या था. वो ये बंगाल का बंटवारा करके वो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर रहे हैं. So there were majority of the Muslims who were there in East Bengal, whereas there were Hindus who were in majority in West Bengal. With this hidden strategy of Britishers, we got to know that they were trying to divide Hindus and Muslims. This was their hidden motive behind the whole thing. ठीक है, जब भी हमारे इंडियन लीडर्स को इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि बंगाल का बंटवारा करके ब्रिटिशर्स हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर रहे हैं, तो वो टाइम पे पूरे बंगाल में एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू होता है.
The people of Bengal, the Bengalis, and the people all over India, our leaders, they started participating in the anti-partition movement. वो ये बंटवारे के खिलाफ थे. You could see that the day of partition, जिस दिन partition हुआ वो 16th of October 1905. तो जिस दिन partition हुआ उस दिन the whole country accepted that day, they observed that day as the national day of mourning. मतलब ये एक मातम मनाने का दिन है कि आज बंगाल का बंटवारा हो चुका. This had happened on 16th of October 1905. Later on, we see that the people of Bengal, they started marching on the streets of Bengal. बंगाल के जो लोग थे ये बंगाल की सड़कों पे उतर जाते हैं और वो जोर जोर से वंदे मातरम का गाना गाते हैं. So Vande Mataram, this song, it was originally written in Bengali language. फिर ये वंदे मातरम में वो कन्वर्ट होता है. That is, I bow to my mother earth. Okay. So here, Vande Mataram was the song which was, being sung on the streets of Bengal. Thereafter, Hindus और Muslims ने अपना यूनिटी दिखाने के लिए रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया. मुस्लिम्स और हिंदूस एक दूसरे के हाथ में वो राखी बांध रहे हैं, showing their sign of unity amongst each other. Next, we had Surendranath Banerjee, we had Anand Mohan Bose, we had Ravindranath Tagore, and many such other leaders who started participating in this mass anti-partition movement. They all joined their hands together so that Bengal, it doesn't get partitioned. लेकिन फिर भी बंगाल का बंटवारा हो ही जाता है 1905 में. Okay, I hope you guys have understood till here. There are no issues till here. In case if you have any queries, just leave it back in your chat box. If not, then we shall continue with the further part of the chapter. Find it. So Indian National Congress, ये जो इंडिया का पॉलिटिकल पार्टी था, अगर याद आए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था 1885 में. वो कुछ तो करेगा ना, बंगाल का बंटवारा हो रहा है तो ब्रिटिशर्स को कुछ तो बोला जाएगा. सो 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलता है, इनका एक मीटिंग होता है. And in the year 1905, Gopal Krishna Gokhale was the president of this Indian National Congress. Gopal Krishna Gokhale पूरी तरह से बोलता है that Indian National Congress is ready to support the anti-partition movement. 1905 में बंगाल का बंटवारा हो गया. 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वापस मिलेगा with Dadabhai Navroji, an amazing leader which India has ever had. He became the president of Indian National Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1906 में दादाभाई नवरोजी होते हैं. दादाभाई नवरोजी ने पहली बार ब्रिटिशर्स को बोला कि हम इंडियंस को स्वराज चाहिए. So for the very first time, he pronounced the word Swaraj from the stage of Indian National Congress. Indian National Congress के platform के through, for the very first time, he put forth this word of Swaraj, the demand of Swaraj that Indians wanted from the Britishers. More than that, he started with a 4-point plan, 4-point program. उन्होंने बोला कि आज के बाद इंडियंस 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे, 4 चीज़ों को फॉलो करेंगे. दैट इज दे विल डिमांड फॉर स्वराज, दैट इज सेल्फ रूल. चलेगा, इंडिया पे ब्रिटिशर्स राज करेंगे, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, दैट इंडियंस शुड बी गिवन मोर राइट्स इन देयर ओन कंट्री. They were the ones who said, he was the one rather, दादाभाई नवरोजी, उन्होंने बोला कि स्वदेशी को फॉलो करो. जो इंडिया में बनाया जाता है, आज के डेट में नरेंद्र मोदी उनको आत्मनिर्भर बोलते हैं. सो ही इज गिविंग दैट मैसेज ऑफ स्वदेशी. और उन्होंने बोला बॉयकॉट ऑल द फॉरेन गुड्स. जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करो, उनको बाय मत करो, जरूरत नहीं है. ओके, सो स्वदेशी एंड boycott, these are two sides of the same coin again. He is also proposing national education. इंडिया में खुद के यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स खोले जाए, खुद का एजुकेशन हो. ब्रिटिश स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयकॉट? यू बॉयकॉट, यू डोंट बाय एनी इंपोर्टेड गुड्स, उसको हम बॉयकॉट बोलते हैं.
आज के डेट में इंडियाज मार्केट इज बीन फ्लरिश्ड विद चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो चाइना के प्रोडक्ट्स को नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है? बॉयकॉट करो, मत बाय करो, आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी। इंडिया में तुम अपने खुद के इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज खोलो। So these are the 4-point program which Dadabhai Navroji, he brings it in front of the people, in front of Indian National Congress, and then unanimously एक साथ मिलके without any doubts Indian National Congress ने ये 4 पॉइंट एक्सेप्ट कर लिए। ओके, स्वदेशी का मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इट इज बीइंग सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनना। बॉयकॉट का मतलब है दैट यू बॉयकॉट ऑल द फॉरेन गुड्स, यू बैंड ऑल द फॉरेन गुड्स इन इंडिया, इनको बाय ही मत करो। फाइन। इसके बाद 1905 के बाद 1906 से लेके 1907 तक, इन द ईयर 1907 वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलेगा इन द सूरत सेशन। तो सूरत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की वापस एक मीटिंग होगी इन द ईयर 1907। यहाँ पे क्या होता है, सूरत में जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में मिलता है तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में वापस बहुत झगड़ा हो जाता है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जब भी बहुत झगड़ा हो गया तो इन दोनों के बीच में बंटवारा हो गया। तो 1905 से लेके अभी हम देखेंगे 1920 तक इंडिया में अभी सिर्फ असर्टिव्स, अभी सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट काम करेंगे। सो गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, these would be some young Congress leaders who shall now work for the independence of India. They will fight against the Britishers from Indian National Congress. We'll move ahead with this next topic, that is suppression of the British. Britishers कैसे इंडियंस को सप्रेस करते थे, कैसे परेशान करते थे। We see that now Britishers, since we started with the anti-partition movement, जब भी हम बंगाल के बंटवारे के खिलाफ जाते हैं तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? Britishers, they were the ones who disrupted everything. जहाँ जहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट करती थी, जहाँ जहाँ पे भी लोग मोर्चा निकालते थे, वहाँ पे पुलिस पहुंच जाती थी लाठी लेके और उनको मारने के लिए। They tried to control this movement, the anti-partition movement. Okay, and more than that, public meetings were being banned. अगर लोग मिल के रास्ते पे मीटिंग कर रहे हैं या कहीं पे भी बिना परमिशन के ब्रिटिशर्स के मीटिंग कर रहे हैं, उस चीज पे रोक लगाया गया था। There were strict punishments which were being given to those people who broke the law. किसी ने भी अगर ब्रिटिश के कानून तोड़े तो उनको स्ट्रिक्टली पनिश किया जाता था, बिना किसी सबूत के उनको जेल में डाल के उनको मारा पीटा जाता था। Even the school children who participated in this, they were being beaten up by the Britishers. There were many restrictions which had been imposed on the newspapers. इंडिया में कोई भी न्यूज़पेपर अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी लिखता था तो ऐसे न्यूज़पेपर्स को बैन किया जाता था, ऐसे प्रिंटिंग प्रेस को बैन किया जाता था, न्यूज़पेपर हाउसेस को फिर पूरी तरह उनको बंद कर दिया जाता था। All those writers and editors who published anything against the Britishers, they were being imprisoned. उनको जेल में डाला जाता था। So these were some severe actions which were being taken by the Britishers. We see that revolutionaries, जो revolutionaries थे, जो Britishers के खिलाफ हथियार उठाते थे, जो Indians, उन्होंने firing शुरू किया था, bomb blast किए इंडिया में. So there were many things which were happening. Here we see that Kesari, this newspaper which had been started by Lokmanya Tilak, केसरी न्यूज़पेपर में जब भी लोकमान्य तिलक ने अपना आर्टिकल लिखा, he said that there were bomb attacks which happened, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये चीज को कनेक्ट किया लोकमान्य तिलक के साथ, that he was connected in those bomb blasts which happened in India. इसके लिए फिर लोकमान्य तिलक को 6 साल के लिए जेल में डाला जाता है at Mandalay in Myanmar. When Bipin Chandra Pal, thereafter, even he was being sentenced to jail, and even Lala Lajpat Rai, he had been put inside the jail. So here there is a question being asked, what is Lal, Bal and Pal? लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, and Pal means Bipin Chandra Pal. All these three extremist leaders, they had been put inside the jail then.
I hope you guys have understood till here. In case if there are any queries, just post it in the chat box and I'm reading them. Next, we have the establishment of the Muslim League. Now, I want you people to understand this thing. जैसे इंडिया में आज तुम देखते हो बीजेपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, फिर उसके बाद शिरोमणि अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी है, शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो ब्रिटिशर्स के ज़माने में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये पॉलिटिकल पार्टी ही थी। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस was one such political party during the times of Britishers. और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा there were many other political parties which were there in India. इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी और एक और नई पॉलिटिकल पार्टी शुरू होती है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ये पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली शुरू की गई थी फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। इट हैड बीन स्पेशली स्टार्टेड फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। तो जो अपर क्लास मुस्लिम्स थे उन्होंने मिलके ये मुस्लिम लीग की शुरुआत की। इनके जो हेड थे इनका नाम था आगा खान। सो आगा खान ये जो मुस्लिम्स के लीडर थे, ये आगा खान ने मिलके ब्रिटिशर्स की परमिशन लेके ब्रिटिश गवर्नर जनरल को मिले जिनका नाम था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो और आगा खान जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं और ब्रिटिश वाइसरॉय जिसका नाम है लॉर्ड मिंटो, ये दोनों मिलते हैं। ब्रिटिशर्स ने आगा खान को परमिशन दी कि तुम अपना खुद का एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर सकते हो और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी शुरुआत हुई उसका नाम था मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग आगे जाके पाकिस्तान के लिए डिमांड करेगा जब भी मोहम्मद अली जिन्ना विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। ओके, सो टॉकिंग अबाउट मुस्लिम लीग अगेन, it had been established in the year 1906. Hereafter, we have something called as the Morley-Minto Act. अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाएंगे जिसका नाम था मॉर्ले मिंटो एक्ट। मॉर्ले ये एक इंसान का नाम है, मिंटो ये दूसरे इंसान का नाम है। सो मॉर्ले ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया। ये ब्रिटेन में बैठता था और इंडिया पे नज़र रखता था। और मिंटो ये इंडिया में बैठता था, ब्रिटिश वाइसरॉय था और वो इंडिया पे नज़र रखता था। तो ये मॉर्ले और मिंटो ये दोनों ने मिल के हम इंडियंस को एक नया कानून दिया जिसका नाम था मॉर्ले मिंटो एक्ट। हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडियन से तंग आ चुके हैं। एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के चले जाओ। मुस्लिम लीग अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनता है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाता है। एंड कंटिन्यूसली वी इंडियंस वी आर गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स, वी आर मार्चिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इंडिया के न्यूज़पेपर्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत कुछ लिखते हैं। इंडिया में बंगाल का बंटवारा हो जाता है लॉर्ड कर्जन के वजह से। एंड ऑल द एजुकेटेड इंडियंस इवन दे आर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस को शांत करने के लिए एक नया कानून दिया जिसका नाम था मॉर्ले मिंटो एक्ट। इसके तहत ब्रिटिशर्स ने हमें क्या बोला कि देखो, ये नए कानून के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने हमें क्या बोला कि देखो भाई, तुम इंडियंस को चाहिए इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल करें, ठीक है, हम इंडिया पे रूल करेंगे, पर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें ज़्यादा राइट्स भी दिए जाए, ठीक है, हम तुम्हें थोड़े और ज़्यादा राइट्स देते हैं। आज के बाद इंडिया की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, व्हाट आर लेजिस्लेटिव असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर नथिंग एल्स बट लॉ मेकिंग बॉडीज। लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे इंडिया में आज विधानसभा है, वैसे उस टाइम पे इंडिया में लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करता था। या आज का जो लोकसभा है वैसे उस जमाने में लेजिस्लेटिव असेंबली था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, चलो इंडिया का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो ब्रिटिशर्स चलाते हैं उसमें हम आज के बाद इंडियंस को बैठने देंगे।
वील इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स, हम इंडियंस को ज्यादा बिठाएंगे ये लेजिस्लेटिव असेंबली में, ताकि इंडियंस भी अपने देश के लिए कानून बना सकें। उसके अलावा ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट जो 1909 का था, उन्होंने इंडियंस को ज्यादा सीट्स तो दे दी, उन्होंने इंडियंस को बिठा तो दिया लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने देश के लिए कानून बनाने के लिए, लेकिन व्हाट वाज इवन मोर वर्स्ट इट वाज कि इंडिया में ये ब्रिटिशर्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेकर आते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये है कि चलो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाले जो इंडियंस हैं उसमें से कुछ सीट्स सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होगी, कुछ सीट्स सिर्फ हिंदूज के लिए होगी, कुछ सीट्स सिर्फ दलित्स के लिए होगी, देयर विल बी सम सीट्स ओनली फॉर सिख। तो यहाँ पे इंडियंस भड़क जाते हैं, यहाँ पे इंडिया के लीडर्स भड़क जाते हैं। दे से दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ इंडियंस, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ये कोई नहीं है। जरूरी नहीं है कि सबको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे, हम जरूरी नहीं है कि सबको अलग अलग सीट्स दे। ओके, ट्रीट एवरी इंडियन इक्वली एट पार व्हेन यू आर मेकिंग देम सिट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया। यहाँ पे सीट रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमें नहीं चाहिए। ये तो तुम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज कर रहे हो, यहाँ पे तो तुम धर्म के नाम पे इंडियंस के बीच में बंटवारा कर रहे हो। हम देखते हैं कि यहाँ पे ओके सी वी ऑलरेडी स्टडीड ओवर हियर इन दिस पार्ट देयर वर डिफरेंसेस इन बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। 1907 में हम देखते हैं कि मॉडरेट्स जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं, और सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को चला रहे थे टिल 1920। लेकिन फिर लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलता है एक दिन। दैट हैपेंस इन द ईयर 1916। 1916 में हम देखते हैं कि लोकमान्य तिलक वो ट्राई कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये जो झगड़ा चल रहा है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ये चीज रुक जाए, इट स्टॉप्स। 1916 में फिर फाइनली हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों एक साथ आ जाते हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस इट गेट्स इनटू अ फ्रेंडशिप विद मुस्लिम लीग, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इस चीज के लिए अग्रीमेंट साइन होता है विच केम टू बी नोन एज द लखनऊ पैक्ट। So as per Lucknow Pact, we see that the Hindus and the Muslims, they came together. Indian National Congress, it came together with the Muslim League. So I hope you guys have understood till here. There are no issues till here. In case if you have any queries, just post it in the chat box, and if not, we shall continue ahead then. Great. So talking about Indian National Congress, हमने already ये चीज़ पढ़ा that Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, he had been put inside the prison cell. हमने यहाँ पे पढ़ा ना, लोकमान्य तिलक को 6 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया था। 6 साल के बाद जब वो जेल से बाहर निकलेगे ना, मजे की बात यह है कि बाहर निकलते ही उन्होंने आके इंडिया में एक और मूवमेंट शुरू किया। डॉक्टर एनी बेसेंट, यहाँ पे जिनका पिक्चर दिख रहा है, शी इज एन आयरिश लेडी, ये आयरलैंड से आई हुई थी। ब्रिटेन के बाजू में ही एक छोटा सा देश है जिसका नाम है आयरलैंड। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया था ना, वैसे ब्रिटिशर्स ने आयरलैंड पे भी रूल किया था। लेकिन आयरलैंड में रहने वाले जो आयरिश लोग थे वो ब्रिटिशर्स के सामने लड़ते हैं और फाइनली उनको आज़ादी मिल जाती है। तो आयरलैंड की एक लीडर थी जिसका नाम था डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट खुद इंडिया में आती है, लोकमान्य तिलक को मिलती है। लोकमान्य तिलक with the help of Dr. Annie Besant, both of them they start a home rule movement in India. वो ये दोनों मिलके एक नॉन वायलेंट होम रूल मूवमेंट में इंडिया में शुरू करते हैं। एंड एज पर दिस होम रूल मूवमेंट which started in India,
यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया के लीडर्स वो ट्राई कर रहे हैं कि वो ब्रिटिशर्स से सेल्फ गवर्नेंस मांगे, स्वराज मांगे। So here we see that as per the Home Rule movement, we Indians are demanding for Swarajya from Britishers. So Home Rule movement, it started in many parts of India. Many common people, they participated in this Home Rule movement. यहाँ पे लोकमान्य तिलक ये बोलते हैं that Swaraj is my birthright and I shall have it. स्वराज मिलना, मुझे मेरा हक मिलना, इस देश की एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना, ये मेरा बर्थ राइट है और ये मैं पाकर ही रहूंगा. So this is a strong slogan which he is giving in front of the Britishers again. Okay. What is a home rule movement? Home rule ये वर्ड का मतलब ही स्वराज है कि चलेगा इंडिया पे ब्रिटिशर्स राज करे, लेकिन जब भी तुम इंडिया पे राज करते हो तुम इंडियंस को उतने पावर भी दो अपने देश को चलाने के लिए. Next, what is the meaning of dissatisfaction? To be dissatisfied. You are not happy. There is another question. Was Lokmanya Tilak being put inside the jail twice for 6 years imprisonment? No, it was only once for 6 years imprisonment. Okay. Fine. Next, here we have World War I, which is going on in India. तो यहाँ पे जब भी इंडिया में नहीं, सॉरी, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है. When the World War I is going on, जब भी वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत कुछ होती है 1914 में, एंड 1914 से लेके 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर वन चलता है. तो कुछ 4.5 साल के लिए ये वर्ल्ड वॉर वन चला. In these 4.5 years, when the World War I is going on, Britishers they participated in World War I. Britishers जो है ये World War I में participate करते हैं. Britishers जब भी World War I में participate करते हैं, वो बिना इंडियंस को पूछे पूरे वर्ल्ड में ये बोल देते हैं कि इंडिया भी World War I में participate करेगा. इसके वजह से इंडियंस भड़क गए. वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स ने जब भी पार्टिसिपेट किया तो वो वॉर में लगने वाला जो भी खर्चा था, वट एवर द एक्सपेंसेस, वट एवर द सोल्जर्स विच वर बीन यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर वन वाज आउट ऑफ द इंडियन ट्रेजरी. पूरा खर्चा पानी इंडिया की ट्रेजरी से उठाया, बिकॉज ऑफ विच वी इंडियंस वर वेरी एंग्री. ब्रिटिशर्स हम देखते हैं, क्योंकि हम इंडियंस बहुत ही भड़क चुके थे ब्रिटिशर्स से, तो हम देखते हैं कि इंडिया में जब भी बाल गंगाधर तिलक ने ये शुरू किया, होम रूल मूवमेंट जब भी इंडिया में शुरू किया, तो वो टाइम पे ब्रिटिशर्स ये समझ गए थे कि इंडियंस को अभी शांत करना बहुत ज़रूरी है. सो वो टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बोला कि चलो हम इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए ना, उनको और पावर्स चाहिए ना, तो उनके लिए हम एक एक्ट पास कर देते हैं. And the name of this act was Montague-Chelmsford Reform. Montague-Chelmsford Reforms के तहत हम देखते हैं कि इंडियंस को कुछ पावर्स दिए जाने वाले थे. There were some constitutional reforms which were supposed to happen. कुछ कानूनी changes. Constitutional मतलब legal. Reform का मतलब होता है change. So there were supposed to be some legal changes that were supposed to happen in India. इंडिया में जहाँ पे इंडियन मिनिस्टर्स, जहाँ पे इंडिया में जीते हुए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जब भी ब्रिटिशर्स के साथ मिल के देश की सरकार चला रहे हैं, तो आज के बाद मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये बोलता है कि आगे जाके ब्रिटिशर्स का ये गोल है, आगे जाके ब्रिटिशर्स 10 साल के बाद फॉर श्योर इंडियंस को ज़्यादा पावर्स देंगे. आगे जाके इंडियंस को राइट्स मिलेगा कि वो अपना फाइनेंस खुद संभाले, वो अपना रेवेन्यू खुद संभाले. दैट मीन्स इंडियंस को राइट्स मिलेगा, उनके ट्रेजरी में से कितना पैसा कैसे यूज करना है उसके बारे में राइट्स मिलेगा कि उनको कहाँ पे कितना पैसा यूज करना है. दे विल गेट द फाइनेंशियल पावर बेसिकली.
एंड दे विल ऑल्सो गेट द पावर ऑफ होम अफेयर्स. अपने देश को कैसे चलाना है वो भी हम उनको 10 साल के बाद ग्रांट करेंगे. लेकिन यहाँ पे इंडियंस भड़क जाते हैं. Everybody was very disappointed when these Montag-Chelmsford reforms they came to us Indians. Why were we so angry? Why were we so disappointed? Montag-Chelmsford reform ने ये नहीं बोला कि हम तुम्हें पावर्स दे देते हैं. उन्होंने बोला कि आगे जाके हम आपको दे सकते हैं. And that is why यहाँ पे we did not get स्वराज्य. This act, it neither gave us स्वराज्य nor even its foundation. स्वराज की शुरुआत तो नहीं हुई है लेकिन स्वराज दिया भी नहीं है. सिर्फ बोला है, शायद देंगे आगे जाके. So this is why we Indians were extremely angry with the Britishers. और 1920 में फिर आएंगे महात्मा गांधी. जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है तब तक महात्मा गांधी is going to play a crucial role for Indian independence then. Okay, I hope you guys have understood till here. There are no queries. In case if you have any, you can just put it down in the chat box. Emberlyn, your question is that does home government means the self-government? I really didn't get your question. What is home rule movement? Home rule, I will again repeat. Home rule का मतलब होता है स्वराज्य, स्वतःचा राज. Indians having more powers to run their country. See, we are okay with Britishers ruling over India. चलेगा, आपको इंडिया पे रूल करना है ना, चलेगा. चलेगा इंडिया ब्रिटेन एम्पायर में आए, चलेगा ब्रिटेन का राजा इंडिया का राजा हो, लेकिन हमें स्वराज दो. स्वराज इन विच वे? दैट व्हेन द ब्रिटिश किंग इज रूलिंग ओवर इंडिया, इंडियंस को तुम उतने पावर्स भी दो, इंडिया में रहने वाले लोगों को उतना पावर दो कि उनके ट्रेजरी पे कंट्रोल इंडियंस का हो. इंडिया का जो खजाना है उस पे कंट्रोल इंडियंस का होना चाहिए, ब्रिटिशर्स का नहीं. ब्रिटेन का राजा कहीं पे भी कैसे भी पैसे यूज कर देगा, बिना पूछे वर्ल्ड वॉर 1 में खर्चा कर देगा हमारे पैसों से, और वर्ल्ड वॉर 1 जीत भी जाएगा. ऐसा थोड़ी ना चलता है. इंडिया का डिफेंस हो, इंडिया का मिलिट्री हो, इंडिया का फाइनेंस हो, इन चीजों में पावर्स इंडियन के ज्यादा होने चाहिए. So that is wherein we call it as home rule. We are demanding for Swaraj within the British Empire. इसको home rule movement बोलते हैं. Okay, I hope, Emmeline, your question has been answered. If you have not understood Vedika, I hope even your question has been answered. Okay. In case if you have any doubt, just let me know. There is a question from Saidam. Devin has asked this question that who won the World War 1? World War 1 ब्रिटेन जीता था, अमेरिका जीता था, फ्रांस जीता था. So these were some of the countries who won the World War 1. And जो countries World War 1 हार गई थी वो जर्मनी थी, you know, then it was Austria, Bulgaria. These were the countries who lost in World War 1. Fine. In case if you have any other queries, you can just post it in the chat box. We shall begin with the next chapter then. Fine. So talking about the non-cooperation movement. Chapter का नाम है non-cooperation movement. But before understanding the meaning of the chapter, we shall understand the entire background of it. और फिर हम non-cooperation movement पे जाएंगे. Okay. Fine. अभी तक हमने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा. You know, if Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, he would had survived for a longer time, then he would had been respected as much as Mahatma Gandhi.
बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट आवर लीडर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. और फिर उसके बाद फॉर्चुनेटली वी हैड महात्मा गांधी who came and then he undertook the freedom struggle for India. So from 1920 till 1947, this era of the Indian history is called as the Gandhian era. We see that when we talk about Mahatma Gandhi, he works on the principles of truth, non-violence and satyagraha. ये तीन प्रिंसिपल्स पे महात्मा गांधी काम करते हैं. हमेशा सच बोलो, by your words, actions, your deeds and even your thought. तुम जो बोलते हो, तुम जो सोचते हो, तुम जो भी कुछ करते हो, उन सब चीजों में there has to be truth. There has to be non-violence. You are not supposed to injure anyone. You are not supposed to, hit anyone. Violence, non-violence का मतलब तुम किसी के साथ भी violently behave मत करो. You are not supposed to be aggressive towards anyone. तुम्हें अगर गुस्सा आ रहा है किसी पे, जरूरत नहीं है हाथ उठाने की या जरूरत नहीं है अब्यूजिव होने की. Okay, so you have to be non-violent in your words, even in your actions, and even the way you think. तुम किसी के बारे में अग्रेसिव सोचो भी नहीं, तुम किसी के साथ अग्रेसिव फिजिकली भी ना हो, और अपने मुंह से बोले हुए शब्द से भी किसी को हर्ट ना हो. इसको हम नॉन वायलेंस बोलते हैं. सो ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह. सत्याग्रह का मतलब वो है सत्य, ट्रुथ के बेसिस पे तुम स्ट्रगल करो, उसको हम सत्याग्रह बोलते हैं. महात्मा गांधी ही सेज दैट देयर इज नो पर्सन हु इज गुड एंड बैड. कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है. इट इज हिज डीड्स. वो उसका डीड्स है, वो उसके एक्शंस हैं जो अच्छे या बुरे होते हैं. सो महात्मा गांधी ही सेज दैट ब्रिटिशर्स आर नीदर गुड, दे आर नीदर बैड. वो जो कर रहे हैं वो खराब है. इफ वी मेक द रॉन्ग डूअर रियलाइज, जो इंसान गलत चीज कर रहा है उसको अगर हम रियलाइज करवाए कि वो कुछ गलत कर रहा है और फिर अगर वो इंसान सुधर जाए, इसको हम सत्याग्रह बोलते हैं. सत्याग्रह, इट इज इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ पेशेंस. सत्याग्रह में बहुत सारा पेशेंस आता है. विथ अ लॉट ऑफ पेशेंस, see, Britishers are very rich. They have arms, they have armaments, they have huge war tanks, they have huge military army, naval army, air force. इंडियंस के पास क्या था? कुछ भी नहीं था. हमारी ट्रेजरी भी ब्रिटिश की ट्रेजरी थी. इस टाइम पे जहाँ पे इंडिया बहुत गरीब है, जहाँ पे इंडियंस के पास उतने हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने का, Mahatma Gandhi, he was the one who gave us this weapon of satyagraha to fight against the Britishers. Just imagine, our freedom struggle is so non-violent, without any bloodshed. बिना किसी खून खराबे के इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है ब्रिटिशर्स से थ्रू दिस नॉवेल टेक्निक, थ्रू दिस यूनिक टेक्निक ऑफ सत्याग्रह. यहाँ पे महात्मा गांधी बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के सामने लड़ो, लेकिन नॉन वायलेंटली. तुम ट्रुथ के साथ नॉन वायलेंटली थ्रू द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह यू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. Make the Britishers realize, make the wrongdoer realize his mistake and see the way he transforms. That is what Mahatma Gandhi he had adopted through his philosophy of satyagraha. तो 1920 से लेके 1947 तक हम महात्मा गांधी का ये टेक्निक जो है सत्याग्रह का, वो हर एक स्टेज, हर एक लेवल पे हम यूज करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स till the time we finally achieve independence. We should not forget this, that Mahatma Gandhi has been admired by many people in the world. For example, Martin Luther King, जो अमेरिका के थे, वो महात्मा गांधी को फॉलो करते थे when he was supposed to fight for the rights of the blacks in America. Nelson Mandela, if you know this person from South Africa, recently, even he was a great follower of Mahatma Gandhi. Barack Obama, who was the ex-president of America, even he used to follow Mahatma Gandhi.
Albert Einstein, he was amazed with the idea of Mahatma Gandhi. Charlie Chaplin, even he loved Mahatma Gandhi. So when we talk about Mahatma Gandhi, worldwide we have great personalities who used to follow him and his idea of satyagraha. So this satyagraha, it was through this technique of satyagraha that India will finally achieve its freedom. We shall now throw a light uh, a bit about on the life story of Mahatma Gandhi now. Okay. I guess we should end today's lecture. We can just do this chapter for the next time. Okay, it has been too much for today. Okay. In case if you have any queries, you can just leave it back in the chat box. If not, then you can for sure leave for today's lecture.